Hello everyone. Today I'm going to cover second part of the class 12th unit 2nd sports and nutrition. Before starting the syllabus, I'm going to once again introduce my book, that is Ratnasagar publication book. This one, this book is available for class 11th and 12th both. Go with this. The publishing house is Ratnasagar Publication, and the writer is Dr. Yogeshwar Goswami. I'm also in this book, in the expert panel of this book. My name is Sheshmani Misra, as you all are aware about it. So it's a very simple and very useful book for you all. So go with it. And second thing, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you can get a lot of videos regarding the subject. Thank you so much. Now I'm going to start the content. अभी तक इस चैप्टर में हमने जो कवर किया हुआ है that is balanced diet, nutrition, elements of balanced diet. In that micro and macro nutrients. Macro में हमने कवर किया हुआ that is carbohydrate, protein, fat and water. And then macronutrient already we have covered vitamins and mineral. When we are talking about vitamins, two types of vitamins were there, like fat soluble vitamins and then water soluble vitamins. And then minerals की हम बात करते हैं तो इनमें there are 16 essential minerals that we have discussed in that last video. Now I'm going to start second part of the chapter, that is the components, nutritive and non-nutritive components of the balanced diet. When we are talking about nutritive component of balanced diet, basically carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, these are the nutritive part of the balanced diet. Basically by these elements we are getting nourishments, we are getting a lot of chemical substances which is helpful for our efficient working. So those elements which are helpful for our efficient functioning, which is helpful for providing us energy, these are the nutritive part of the diet. Second thing, when we are talking about non-nutritive part of the balanced diet, in the non-nutritive part there are water, fiber and phytonutrients. Water एक ऐसा element है, like we can keep water in nutritive part also, because we are getting a lot of minerals from water, like cobalt, sometimes hydrogen or oxygen, even so many minerals are available in the water. It is up to the climatic conditions, from which area or from which climate we belongs, but according to climatic conditions, water have a lot of minerals, so we can keep water in nutritive part also, and otherwise water को हम non nutritive parts में भी रख सकते हैं, because generally हम अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करते हैं या विटामिन्स की बात करते हैं तो वो ये सब चीज़ें वाटर में अवेलेबल नहीं होती हैं. देन बात करते हैं फाइबर की. व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ फाइबर? बेसिकली फाइबर इज़ द वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द आर फूड आइटम्स. जनरली क्या होता है कि हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, जो भी हम केमिकल सब्सटेंसेस हमारी डाइट में अवेलेबल होता है, अगर हम उसको डायरेक्टली विदाउट फाइबर इनटेक करते हैं तो वो हमारी डाइजेशन सिस्टम में या हमारा जो वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल है उसमें उसका एसिमुलेशन जो एक या हम सबको पता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव पार्ट है उसमें जो हमारे फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो एसिमुलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है. जो उसका मूवमेंट है उसको हम एसिमुलेशन बोलते हैं. तो ये जो मूवमेंट है वो बहुत क्विक हो जाता है अगर हम केवल इन सॉफ्ट केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं इनको डायरेक्टली लेते हैं. फाइबर काम क्या होता है? फाइबर हमारे डाइट की वॉल्यूम को बढ़ा देता है. उसके दो बेसिकली तरह के फाइबर्स होते हैं. एक ऐसा जो
हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनको सॉफ्ट जेल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जो आहार नाल है, उसकी जो इंटरनल स्लाइवा वाला पार्ट है, वहाँ पर इजीली हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारी फूड जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी वॉल के थ्रू हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, हमारी शरीर उसको आराम से इनटेक कर लेती है। सेकंड पार्ट हमारी जो फाइबर का है, फाइबर जो फूड आइटम्स हम लेते हैं उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिससे एसिमिलेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है और जो फूड पार्टिकल्स वो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें बहुत आराम से मूव करती है। इससे हमारी जो आहार नाल है उसको टाइम मिलता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको टाइम मिलता है सारे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का अपने अंदर। अदरवाइज़ क्या होगा, हम जितने भी फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे स्केलेटल सिस्टम पहुंच जाएंगे और वहाँ से हम बॉडी से वो बाहर हो जाएंगे। तो फूड का जो 100% यूटिलाइजेशन है उसके न्यूट्रिएंट्स का, वो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो ये फाइबर्स हैं इनका बहुत मेजर रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। प्लस फूड पार्टिकल्स हमें हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी बॉडी में जो मिनरल्स और जितने भी न्यूट्रिटिव पार्ट्स हैं उनके लिए एक वेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन वेक्टर की तरह यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में। सो वाटर एंड फाइबर दे बोथ आर अ बेसिक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर डाइट। देन हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक है या एक नया पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच एड्स कलर एंड फ्लेवर इन आवर फूड और फ्रूट्स। हम लोग देखते हैं सारे फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो ग्रीन, रेड, ऑरेंज, समटाइम्स वेरी अदर डिफरेंट कलर्स। ये जो पिगमेंट है फाइटोन्यूट्रिएंट, उसकी वजह से ही हमारे जो फ्रूट्स हैं या हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका डिफरेंट कलर होता है। प्लस ये उनमें एक टेस्ट या उसमें एक फ्लेवर ऐड करते हैं। लाइक अगर ऑरेंज का जो फ्लेवर है या एप्पल का जो फ्लेवर है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। इनका काम हमारी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है, जो हमारी बॉडी में स्किन को बहुत क्लियर करते हैं, साथ में हमारी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, साथ में हमारी बॉडी में हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करते हैं, जिससे हमारे ऊपर एज का इफेक्ट थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक वर्क ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। देन हम लोग बात करते हैं हेल्दी डाइट की। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी डाइट, और सॉरी हेल्दी वेट। व्हाट इज हेल्दी वेट? एज पर टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर, आर हेल्दी वेट वी कैन फाइंड आउट हेल्दी वेट बाई BMI, by body mass index. As per body mass index table, जिसका भी BMI, we all are aware about body mass index, जिसका भी BMI below 18 है, he is underweight. 18.5 to 24.5, that is the average or normal weight, and above 24.5, that is obesity category. उसमें भी 30 प्लस chronical या chronic और obesity category में आ जाता है बंदा। तो ऐसी कंडीशन में हम एक जो हेल्दी वेट है वो कैलकुलेट बेसिकली कर सकते हैं BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से। हम अपना बॉडी का जो वेट है हाइट से डिवाइड करके, और फिर उसको हम अपने जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है। वहाँ से अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम अंडरवेट कैटेगरी में है तो डेफिनेटली वी हैज़ टू इम्प्रूव आवर बैलेंस डाइट। अगर हमारी जो कैटेगरी है नॉर्मल है तो हमें उसको सस्टेन करना होगा, हमें उसको कंटिन्यू करना होगा बाय एक्सरसाइजेस और प्लस बाय बैलेंस डाइट। एंड इन सेकंड कंडीशन, इफ वी आर ओबीज, तो वी हैज़ टू गो फॉर सेवरल एक्सरसाइजेस, योगिक ट्रीटमेंट और सम gymnasium with the expert advice. Sometimes if we have some physical challenges like thyroid or other metabolic disease, so we should consult with either जो हमारा सोसाइटी का एक जो फिजिशियन है, वी कैन गो विद दैट, और वी कैन गो फॉर एनी डाइटिशियन और एनी अदर एक्सपर्ट एडवाइस. नाउ how we can maintain this healthy diet when we before discussing about how we can maintain healthy body weight, हमारे पास कुछ और भी ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम अपनी ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट है वो किस कैटेगरी में आता है. जिसमें एक आता है हमारा जो वेस्ट का सर्कमफ्रेंस है, उसको मेज़र करके भी हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, या वी आर इन ए नॉर्मल कैटेगरी और इट इज़ डिफरेंट कंडीशन. लाइक हम लोग जब बात करते हैं तो
अगर एक हम जब अपने वेट अपने कमर की या अपने वेस्ट की सर्कमफ्रेंस को काउंट कर रहे होते हैं फॉर अ मैन, इफ़ इट इज़ लेस देन 40 इंचेस, 35 to 40 inches, then we are in normal condition. Above 40 inches, that is obesity category. For female, it is 30 to 35 inches. अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो जो that individual is in obesity category or he is in chronic obesity category. Then for female, this test is not applicable in pregnancy period. जब भी प्रेगनेंसी पीरियड होता है ऐसी कंडीशन में उसका जो बेली फैट है, उसका जो बेली सर्कमफ्रेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वी कैन नॉट मेजर अ फीमेल healthy weight by this test in pregnancy period. So just keep this thing in mind. And second thing, one more test is there, that is called WHR, waist hip ratio test, by which we can calculate our weight category in physical education field. Then we can now how we can maintain a healthy body weight. First thing, find out our weight category, in which कैटेगरी वी आर लाइक हम अंडर वेट कैटेगरी में हैं या ओवर वेट कैटेगरी में हैं, और वी आर इन नॉर्मल कैटेगरी. इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दैट कैटेगरी, देन बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी. इफ़ वी आर अंडर वेट तो डेफिनेटली हमारे अपनी बॉडी में फैट का, प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का वर्क हमारी बॉडी में मसल्स को ग्रोथ कराना है, मसल्स को डेवलप करना है, प्लस जो डेड सेल्स हैं उनकी रिकवरी करना है. तो हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन की जो कंजप्शन है वो बढ़ाना होगा हमारी बैलेंस डाइट में. कार्बोहाइड्रेट और फैट को बढ़ाना होगा, क्योंकि फैट हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी वेट मेंटेन होगा. देन बात करते हैं इफ़ वी आर इन नॉर्मल कैटेगरीज, तो हमें अपनी कैलोरीज बर्न की हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच कैलोरीज वी नीड टू मीट आउट आवर डेली रूटीन वर्क और डेली रूटीन एनर्जी. उतनी कैलोरीज को ही हम इनटेक करें और उसको सस्टेन करें कि अगर हम लोग कुछ ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो उसको हम वापस बाय एक्सरसाइज और बाय सम अदर वर्कआउट हम उसको बर्न करें. देन इफ़ वी आर इन ओबेसिटी कैटेगरी, डेफिनेटली हमें अपनी बैलेंस डाइट को चेक करना होगा, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट को लेस करना होगा, प्रोटीन को भी सेम लेस करना होगा, प्लस फैट को भी लेस करना होगा. देन हमें हमारे विटामिन और मिनरल्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जब हम अपनी डाइट को लेस कर रहे हैं, अपनी डाइट को हम कम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी ना होने पाए, जिससे कि हमें किसी भी डिफिशियंसी डिजीज़ को फेस ना करना हो. देन बात करते हैं अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ आर देयर फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट. वी कैन गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस इन जिम्नेजियम और फॉर स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस, योगिक ट्रीटमेंट्स आर देयर, वी कैन डू योगिक आसनास, और calisthenics are there, or a lot of physical activities, sports and games are there by which we can manage our weight or we can maintain our daily weight routine life. Then one more thing is there, whenever we are going to lose or take or get the weight, और हम अपना ऐसे कुछ मेजर चेंजेस जब भी हम करने जा रहे हैं, तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि डू नॉट गेन मोर देन 2 kg in a month or do not lose more than 2 kg in a month. That is very harmful without a expert advice. इससे ज़्यादा और कम अगर हमें गेन करना है और लूज़ करना है, सो गो विद द एक्सपर्ट एडवाइस, देन ओनली यू कैन लूज़ और गेट द वेट. अदरवाइज मे बी यू कैन लूज़ बाई एक्सरसाइजेस और अदर थिंग्स, और यू कैन गेट द वेट बाई increasing or supplementation or balanced diet, but that is very harmful for you, and maybe it affects your functioning system, your internal system. So always go with the expert advice. Then बात करते हैं for maintaining a balanced diet. हम लोग को balance healthy body weight, we had to take every meal in a definite time. हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डे आफ्टर मील एंड देन डिनर, इसका एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए, एक डिसाइडेड टाइम होना चाहिए, और हमें ये सारे जो आइटम्स हैं, हमें सारे हमारे मील हैं वो टाइम पे लेना होगा, हमें इसको स्किप नहीं करना होगा. एक्सरसाइज के टाइम पर जनरली ऐसा होता है कि हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत बढ़ जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज कर जाता है. ऐसी कंडीशन में भूख बहुत लगती है. अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कंडीशन में ज़्यादा फूड वापस इनटेक करेंगे, तो हमारी कैलोरीज फिर से बढ़ेंगी और फिर हम ओबेसिटी कैटेगरी में जाएंगे. तो इट इज़ बेटर कि काउंट योर कैलोरीज एज पर डिमांड ऑफ योर बॉडी.
जितनी हमें नीड है कैलोरीज की उतनी कैलोरीज को हम इनटेक करें। देन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए डाइटिंग करते हैं। देन व्हाट इज डाइटिंग? डाइटिंग इज following a particular diet chart to gain और lose the weight। बहुत सिंपल लैंग्वेज कर सकते हैं कि जब हम अपनी वेट को कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर या कोई एक सेट डाइट चार्ट को हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइटिंग। अब डाइटिंग की कंडीशन में डाइटिंग के बेनिफिट्स तो हैं कि डेफिनेटली हम कई बार अपनी इफ़ इट इज़ अप टू एक्सपर्ट एडवाइस हम वेट को मेंटेन करते हैं, कई बार वेट लूज़ करते हैं, हमें जितनी भी वी कैन मीट आउट द डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड एनर्जी। बट इन दैट कंडीशन व्हेन वी आर नॉट डूइंग इट इन एक्सपर्ट एडवाइस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। लाइक जब भी हम कभी ज़्यादा वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम अपने मील्स को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। डू नॉट स्किप एनी मील। हमारी बॉडी की एक डिज़ायर्ड या एक लिमिटेड नीड होती है हर एक टाइम पर। लाइक ब्रेकफास्ट के टाइम पर डेफिनेटली बॉडी ब्रेकफास्ट की नीड होती है, इसलिए उसका एक सिस्टम रखा गया है। द सेम थिंग इज़ विद लंच, डे आफ्टर मील और डिनर। अगर हम इनमें से किसी भी आइटम को या किसी भी जो पर्टिकुलर हमारा मील है उसको हम स्किप कर रहे हैं, इट मीन्स इन दैट टाइम जो हमारी एनर्जी की नीड है, हमारी जो बॉडी को ज़रूरत है, वो कंप्लीट नहीं होगी और हमारा जो मैकेनिज़्म है, हमारा जो फंक्शनल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होगा और उससे हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं या जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो प्रोटीन हो या फैट हो, उनका बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी कभी प्रोटीन या फैट के बर्न होने से हमें एनर्जी मिलती है, इन दैट कंडीशन उसकी एनर्जी तो मिलती है बट उसके बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। देन उसके अलावा बात करते हैं, कभी भी हमें मोर देन और लेस देन 2 kg गेट और वेट नहीं करना चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा डाइटिंग से कर रहे हैं तो वो हमारे फंक्शन सिस्टम को इफेक्ट करता है। प्लस हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि वेन एवर वी आर डूइंग डाइटिंग, अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और अवॉइड सम अदर थिंग्स जो भी डाइट में हमारे बहुत हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। सी वन थिंग इज़ देयर, डू नॉट स्किप एनीथिंग फ्रॉम योर डाइट। होता क्या है ऐसी कंडीशन में, व्हेन वी आर गोइंग टू स्किप एनी डाइट, लाइक वी आर स्किपिंग कार्बोहाइड्रेट, वी आर नॉट ईटिंग पोटैटोज, राइस और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। होता क्या जनरली कुछ ऐसी चीज़ें केवल जो ऐसी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो केवल इन्हीं फूड आइटम्स में अवेलेबल होते हैं और इन दैट कंडीशन जब हम इसको नहीं ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा होता है और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी की जो इंटरनल सिक्रेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो हमें किसी भी फूड आइटम को नेग्लेक्ट नहीं करना है या उसको ख़त्म नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसकी जो अमाउंट है उसको हमें लेस करना है या कंट्रोल करना है। सेकंड थिंग, एक और पिटफॉल डाइटिंग का हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत विगरस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसकी कंपैरिजन में डाइट को बहुत कम कर देते हैं। सी हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इन द प्राइमरी कंडीशन केवल हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ही ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है और वही ब्रेक हो रहा होता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वापस लोडिंग नहीं करेंगे, उसकी रिकवरी नहीं करेंगे और प्लस हम रेस्ट नहीं करेंगे प्रॉपर, तो ये एक्सरसाइजेस नो डाउट हमारा वेट लूज तो करेंगे बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये हमारी मसल्स को और हमारी बॉडी को ज़्यादा वीक करेंगे और हमारे फंक्शन जो हमारा इंटरनल फंक्शन सिस्टम है उसको बहुत वीक करना स्टार्ट कर देंगे। सो दीज आर द पिटफॉल ऑफ द डाइटिंग। देन 2 वर्ड्स आर देयर, एलर्जी एंड इंटॉलरेंस। फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? ये फूड इंटॉलरेंस मीन्स जब हम फूड की क्वांटिटी कम और ज़्यादा करते हैं और समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो फूड हम बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर अस, इन दैट कंडीशन वी कैन कॉल दिस इज़ फूड इंटॉलरेंस। और एलर्जी होती है जब कोई ऐसा डाइट या कोई ऐसा डाइट जिसमें कोई ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है या उस केमिकल सब्सटेंस से हमारी बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल सेक्रेट हो रहा है या वो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम फूड एलर्जी। वो बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम से हो सकता है या उस पर्टिकुलर फूड आइटम के साथ किसी दूसरे फूड आइटम के कॉम्बिनेशन से हो सकता है।
ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं फूड मिथ्स की। इन दिस चैप्टर वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज देयर, जो मैं भी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर अक्सर बच्चों से बात करता हूँ, तो बच्चे में इवन बच्चे कई बार ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि हम लोग जब उनको डाइटिंग के बारे में बता रहे होते हैं तो बच्चों के ऐसे बहुत बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कि सर मुझे बताया गया कि वी कैन नॉट अवॉइड पोटैटोज एंड राइस फ्रॉम डाइट, जो कि हमें बहुत हेल्दी डाइट बनाता है। सी, दिस इज अ मिथ to avoid potatoes and rice, because without potato or rice or sometimes milk and milk products we cannot get desired or needed amount of carbohydrate in our body, and especially in young age, teenagers and in adult person up to 50 years we need too much carbohydrate to meet out our energy level, to meet out our demand of energy or demand of the daily routine work. So do not avoid these things. Yes, limited all these things, just set a limit for these things कि हमें इनको लेना है, बट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, जितनी हमारी कैलोरीज की ज़रूरत है उतनी लेनी है. डू नॉट स्किप दिस थिंग्स. वन मोर मिथ इज देयर दैट अवॉइड येलो पार्ट ऑफ द एग, जिसको हम लोग यॉक बोलते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं जनरली. इट्स अ मिथ की दैट इज़ नॉट अ रिच फैट. सी, वी ऑल आर अवेयर अबाउट कि एग इज़ अ कंप्लीट फूड. इवन मिल्क इज़ ऑल्सो कंप्लीट फूड, बट मिल्क में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो नहीं पाए जाते हैं जो कि एग में मिलता है. तो एग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, जिससे हमें ढेर सारे एसेंशियल प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इवन हमें अच्छा फैट मिलता है. अब जब हम उसकी येलो पार्ट की बात करते हैं, उसका जो येलो पार्ट है दैट इज़ टू मच न्यूट्रिशियस. मे बी कुछ लोगों को उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन देर इज़ नो नीड टू अवॉइड और स्किप दिस पार्ट ऑफ द एग. दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी. देन इट्स अ मिथ कि वी कैन नॉट टेक फिश और मिल्क टुगेदर इन डाइट. सी, नीदर इन फिश और नॉर इन milk there is any chemical which is harmful for body, or no substance is there in the both diet element by which there is a byproduct of any harmful chemical substances which is harmful for the body. तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम फिश को और मिल्क को एक साथ ना लें, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत लॉस या हार्मफुल है. वी कैन टेक फिश एंड मिल्क टुगेदर. Second thing, one more myth is there that do not eat fruit in night or in the evening time. See, it is up to our biological clock. We can eat everything every time. It is up to our own biological clock that by which for which product our body is automatized, or by which product we can nourishing ourselves continuously. Yes, इन द बिगनिंग डेफिनेटली मे बी कुछ चेंजेस आ सकते हैं. हम कुछ नई चीज़ें खा रहे हैं सुबह शाम या दिन में या रात में, कभी भी खा रहे हैं, तो मे बी कुछ चेंजेस हो सकते हैं हमारी बॉडी में, या कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है. बट इफ़ वी आर टेकिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन द नाइट एंड आवर बॉडी इज ऑटोमेटाइज फॉर दिस फूड आइटम, वी कैन टेक, नो प्रॉब्लम इज देयर. वन मोर मिथ इज देयर दैट वेज those who are 100% vegetarians, they cannot make healthy muscles, or they cannot build a healthy body. It is just a myth, because as we all are aware about it, our digestive system is for vegetable or for vegetables and grains. Our digestive system is more suitable than non-veg items. So we can make our muscles or very healthy body by vegetables and fruits also. One more thing is there, like we can compare in a other perspective. जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस या जितने भी न्यूट्रिएंट्स नॉनवेज आइटम में पाए जाते हैं, चाहे वो मीट हो, एग हो, या कोई किसी तरह का भी नॉनवेज आइटम हो, वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस या वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे वेजिटेबल पार्ट में पाए जाते हैं, या हमारे वेजिटेरियन फूड्स में पाए जाते हैं. तो हर एक पार्ट का एक सप्लीमेंटेशन या उसका एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है. रिच प्रोटीन के लिए अगर हम मीट लेते हैं तो डेफिनेटली रेड मीट लेते हैं, तो वो हमारे चीज़ और मिल्क में भी अवेलेबल है. सो वी कैन नॉट
think about it, or we cannot say that non-vegetarian only can build muscles. No doubt, vegetarians also can make a very healthy and very muscular body. Then, one more myth is there that प्रोसेस्ड फूड और वी कैन से दैट जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं डाइट को कुक करने में, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ. सी इट इज़ अप टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. पहले नॉर्मल चूल्हे पे खाना बनता था, दैट वाज आल्सो हेल्दी फॉर अस. अभी वी आर यूजिंग एलपीजीज, दैट इज़ आल्सो नाउ आवर बॉडी इज ऑटोमेटाइज फॉर दैट. और अगर हम माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वी कैन नॉट से दैट इज़ टू मच हार्मफुल फॉर बॉडी. नो डाउट इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इससे जो लाइक अगर हम फ्रिज की बात करते हैं, फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचा रहा है. नो डाउट इसके बाई प्रोडक्ट्स कुछ मे भी हार्मफुल हो सकते हैं, बट ये डाइट या इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो हर एक इंडिविजुअल फूड आइटम के लिए डिफरेंट है. तो हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चूल्हे पर नहीं पका सकते हैं और बहुत सी जो हम माइक्रोवेव में नहीं रख सकते हैं. तो जो जिस फूड आइटम के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो वहाँ के लिए सूटेबल है. वी कैन नॉट से दैट दिस प्रोसीजर इज़ मोर बेटर देन अदर्स. तो हमें हर एक तरह के फूड आइटम को हम कर सकते हैं या उसको कुक करने का तरीका यूज़ कर सकते हैं. वन मोर लास्ट मिथ इज़ अवॉइड फैट्स, और फैट इज़ अनइम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट. Definitely not. Fat is the essential part of the balanced diet, because without fat we cannot use 4 type of vitamins like vitamin A, D, E and K. These are fat soluble vitamins, and in the absence of the fat, our body cannot utilize these vitamins, and these vitamins are the main substances by which our functioning part or our metabolism is going to be regulated. So we cannot say that फैट इज़ हार्मफुल. यस, ईट हेल्दी फैट, जो कि कोशिश करके हमें सैचुरेटेड फैट लेना है, जो कि हमारे लिए बहुत जो फ्रेश हो और जो अच्छी क्वालिटी का हो, जो हमारी बॉडी में इजली अब्जॉर्ब हो सके और डाइजेस्ट हो सके. एंड वन मोर थिंग, फैट्स आर द टर्सरी ऑप्शन और सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन. फैट से ही हमें एनर्जी मिलती है. सो वी कैन नॉट अवॉइड फैट फॉर आवर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म. This is the last video for the unit first. In the next video I'm going to start the chapter number 1, unit 1, that is planning in sports. So be tuned, stay tuned, and आप लोग मेरी वीडियोस सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए. Thank you so much. Stay blessed.